Some people dream of success while other people get up early and make it happen. With these words, we will start our work. We are doing 8th sum of exercise 2.5. And in this sum, we have to factorize 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. In this, if we want to factorize, firstly we have to split every term. We have to split in this way that any two terms become the cube of any number. Then we can use identity a minus b cube or a plus b cube. Here 64a cube is 64 is a cube of 4. 4 a cube is a cube. तो 4a cube is 64a cube minus 27 क्या है? किसका क्यूब है? 3 का. 3b cube. Clear? If two number is the cube of any number and here in between these two numbers there is a negative sign, so you can clearly identify that which identity you have to use. You have to use a minus b whole cube. This is your hint. Hint समझो कि आपको hint मिल गया कि आपने ये identity use करनी है. Now these two terms split. Now if you have to split these terms ना, don't think. You have to use direct identity in the same way. You can check the terms are equal. A cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. This is our identity. Minus 3a square b. A क्या है? 4a. 4a square b is 3b. Minus 3a square b plus 3ab square. A is 4a and b is 3b. A, b square. Now you have to check these two terms are equal or not. 4 4s are 16 and 3 3s are 9. 16 9s are 144. A square and b. Yes, these two sums are same. These two terms are same. That means our identity is right. And the next 3 3s are 9 or 4 3s are 12. 12 9s are 108. A or B का still. This last term is also same. So this is the expand form. हमें इस expand form का factorize बनाना है. Firstly you have to write the identity using identity. Using identity a minus b cube. We have to use this identity a minus b cube. What is the value of a minus b cube? A cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. This is our identity. We have to use this identity directly. So this is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. इस expand form की identity क्या है? a minus b cube. So इस expand form की identity होगी, factorization होगी a minus b cube. a क्या है? 4a and b is 3b. तो 4a minus 3b square, cube. 4a minus, because cube and 3 cube. You have to write it 3 times. 4a minus 3b, 4a minus 3b and 4a minus 3b. This is our answer. This is the factorization of given polynomial. In this way, you can solve your sum. The next part. In next part, the statement is 27 p cube minus 1 by 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4p. Firstly, we have to split every term because we have to factorize this. In factorization 27 क्या है? 3p का क्यूब बन रहा है. Yes. Minus 1 by 216 होता है 6 का क्यूब. 6 cross 6 cross 6 is 216. So you can write it 1 by 6 cube. A cube minus b cube. If the two term is the cube of any number and between two terms the sign is negative, so the identity is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. So that minus 3a square b. A square b. b is 1 by 6 plus 3a b square. b square is 1 by 6. Clear? आप इसे सोल्व करोगे. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6. तो 9 by 2p square. The both term are same ना. If they are same, that means our identity is okay.
it is clear that we have to use this identity. And the next 3 3s are 9, 9 by 36, 1 by 4 p square. This last term is also same, so we can use this identity. What is the factorization of this identity? Because this is an expand form, so you have to write directly using identity. कौन सी identity use करें? In between two terms the sign is negative, that means a minus b cube, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. ये a cube है minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. तो इस expand form की factorization क्या है? a minus b cube, and our a is 3p and b is minus 1 by 6. That means this का cube is our answer. You have to write it 3 times. 3a minus 6, 3p minus 1 by 6 and 3p minus 1 by 6. This is your factorization of given polynomial. Clear? Next. In next sum, the next is 9th sum, and we have to verify x cube plus y cube is equal to x plus y, x square minus xy plus y square. We have to verify this statement. It means हमें verify करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है. हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. हम आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे, देन वी वेरीफाई दैट दिस टू आर इक्वल और नॉट. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है यहां से. डायरेक्ट सॉल्यूशन में आपने आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लिखनी है? आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्यूब का नंबर है. इट मीन्स आपने क्यूबिक वाली आइडेंटिटी लेनी है. सॉल्यूशन वी नो दैट, आपको पता है ये वाली लाइन, वी नो दैट a प्लस बी क्यूब. आप एक्स वाई में काम कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज एक्स एंड वाई. एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर. आपको ये लाइन पता है क्योंकि ये तो हमारी आइडेंटिटी है. हमने इस आइडेंटिटी को ऐसे लिखा. इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट, इसके प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉमन ले लिया इंटू एक्स प्लस वाई. बिकॉज बोथ आर द सेम, दोनों सेम लाइनें हैं, दोनों इसकी आइडेंटिटी इसके इक्वल है, तो मैंने ये वाली ले ली. दिस मीन्स x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दिस. अब इस हमने स्टार्ट किया आइडेंटिटी से. मैंने स्टार्ट की लाइन वी नो दैट x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस. क्लियर? अब हमें प्रूव करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू. अब इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये ना, इफ वी हैव टू प्रूव दिस लाइन ना, तो एक्स्ट्रा चीजों को आप सेकेंड साइड ले आओगे. ठीक है? तो हमने लिखा x प्लस वाई क्यूब, ये नंबर एज इट इज लिखा मैंने, और इस टर्म को मैं यहां पर लेके आई. क्यों लेकर आई? बिकॉज मुझे सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए थी. सो दैट मैंने इस वैल्यू को यही रहने दिया और बाकी सबकी पोजीशन चेंज कर दी. माइनस 3, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो यहाँ आपका एज इट इज, इसका साइन चेंज मत करना क्योंकि ये तो ब्रैकेट में एक सिंगल टर्म है, ये भी टर्म है, दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ का साइन चेंज होगा. ये प्लस यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा. माइनस 3xy into x plus y. This is equal to x cube plus y cube. Clear? Now here x plus y इस टर्म में भी, x plus y इस टर्म में भी है, तो मैं इस x plus y को क्या करूंगी? कॉमन ले लूंगी. तो मैंने x plus y को कॉमन लिया, x plus y, बिकॉज एक क्यूब है, यहाँ सिंगल 1 है ना, तो मैंने 1 पावर कॉमन ली. लिस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन ले लिया. एंड अब क्यूबिक में से एक पावर बाहर कॉमन जाएगी तो अंदर कितने रह जाएंगे? एक्स क्यूब में से मैंने एक्स को बाहर निकाला, अंदर एक्स स्क्वायर रह गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर? माइनस, अब ये बाहर चला गया तो रह गया 3x. ब्रैकेट कर दो क्लोज. क्लियर? यहां से कुछ नहीं किया, मैंने x प्लस वाई को कॉमन लिया, अंदर रह गया, ये क्यूब था, क्यूब में से एक कॉमन किया तो स्क्वायर रह गया, माइनस एज इट इज 3xy एज इट इज, क्योंकि x प्लस वाई की सिंगल पावर तो बाहर चली गई. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई.
मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू में x प्लस वाई बाहर कॉमन है ना, सो दैट आई टुक दिस, मैंने ये कॉमन पार्ट लिया। अब सोल्व करो इसे, x प्लस वाई एज इट इज एंड x प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट दिस x स्क्वायर plus y square plus 2xy and here minus 3xy, bracket close, this is equal to x cube plus y cube, clear? अब इस आइडेंटिटी को सोल्व दोबारा करो, x plus y x square plus y square, this is minus 3xy, this is plus 2xy, the answer will be minus xy because minus 3 plus 2 क्या होता है minus 1, तो minus xy, this is equal to x cube plus y. प्रूव यही करना था, x cube plus y cube is equal to x plus y, x square plus y square minus xy. Because term interchange है but same value है, x square पॉजिटिव है, y square पॉजिटिव है, minus xy नेगेटिव है, क्लियर? सो यही प्रूव करना था और ये आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने ये यहाँ प्रूव कर दिया, hence verified, hence verified. You have to write at last, hence verified. This is your solution. I will tell you again. आपको ये प्रूव करना है, इसमें हिंट है कि दो नंबर का क्यूब है, उन दो नंबर क्यूब के बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन है, सो यू हैव टू राइट दिस, वी नो दैट x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दिस लाइन। अब इसमें से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, पहले तो इन दोनों लाइनें सेम है, मैंने ऐसे लिखा, फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको एक साइड रखा और सेकंड टर्म को मैंने पोजीशन चेंज करके यहाँ ले आई। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव साइन होगा, दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस वाई, सो टुक दिस नंबर एज ए कॉमन पार्ट x प्लस वाई, तो क्यूब में से 1 गया स्क्वायर, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy एज इट इज, ठीक है, x प्लस वाई कॉमन है, दिस इज स्क्वायर, ओपन दिस आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये नंबर एज इट इज। अब ये माइनस 3 प्लस 2 बिकॉज सेम फॉर्म में है ना, द लाइक टर्म्स है, तो माइनस xy, दिस इज आवर आंसर, हेंस वेरीफाइड, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, next part is same as the first part but you have to look it very carefully. Second part of ninth sum, second part of ninth sum, we have to verify x cube minus y cube is equal to x minus y, x square plus xy plus y square। मुझे ये टर्म निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर? अब इस टर्म में, इस इक्वेशन में टू नंबर्स का क्यूब है एंड इन बिटवीन दीज टू नंबर्स द साइन इज नेगेटिव, सो आप सॉल्यूशन में डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है ना, minus 3x square y plus 3xy square or this both x minus 3xy into x minus y, these both are same, so you can use this also, x cube minus y cube minus 3xy into x minus y, clear? अब हमें वैल्यू चाहिए इस वाली टर्म की, तो जो नेक्स्ट टर्म है इसको कहाँ भेज दोगे, सेकेंड साइड, तो आपने लिखा x माइनस वाई क्यूब, ये नेगेटिव है तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये टर्म एज इट इज यहाँ है और ये नेगेटिव की यहाँ जाके क्या होगी, पॉजिटिव। डोंट चेंज दिस साइन क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये टर्म एज इट इज इसके साथ जा रही है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में जा रही हैं, तो ये बाहर का साइन चेंज होगा, यू हैव टू चेंज दिस साइन नॉट दिस साइन, क्लियर? अब ये पॉजिटिव हो गया, दिस हो गया, अब इसमें कॉमन क्या है, x माइनस वाई, तो आपने x माइनस वाई को कॉमन निकाला, क्यूब है, क्यूब में से एक बाहर गया तो अंदर क्या रह गया, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, क्लियर? ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मैंने यहां से ब्रैकेट स्टार्ट की थी, दिस इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्लियर? अब x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है ना, माइनस 2xy प्लस ये 3xy एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपने क्या लिखना है, x माइनस वाई
x square plus y square minus 2xy plus 3xy. They both are like terms and minus 2 plus 3 क्या होता है? Plus xy. तो solution होगा plus x. This is equal to x cube minus y cube. Clear? So हमें यही प्रूव करना था ना, x cube minus y cube equal to x minus y, x square plus y square plus xy. Hence write down the last term, hence verify. Hence verify. This is your solution. In this way you can verify these terms.